Guru Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So we've been meeting for a long time in the combined classes. So जो Friday class है, youth class है, जो third chapter पे चल रही है, I'm gonna ask you, where were we in this journey of the Gita? कहाँ पे थे हम? किसी को याद है? Third chapter के कौन से verse में? Third chapter मैं नहीं बताते चलो. Yes, 3.13 is where we are. 3.13, yeah. Very important shloka, big blow from Shri Krishna. अर्जुन को तो ये ब्लो नहीं लगा वैसे, because for him this is totally normal, but for all of us maybe it's a blow. So I'm just going to do a little quick recap कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे जाएंगे आगे, so that we can quickly take it forward from there. So this is a conversation between Shri Krishna and Arjun. अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में ये डिवाइन कॉन्वर्सेशन है जो हो रही है on the battlefield of Kurukshetra. How does it start? How does the Gita start? Does anybody remember? Sorry? Dhritarashtra Vacha, but what is the mood in which it starts? Fear, yes. Fear of whom? किसका fear and about whom? About losing your own. Who's fearing all of this? Arjun is fearing all of this. Actually the first जो chapter है English में उसका नाम battlefield, setting of the battlefield है कि पूरा setting कैसे दिखा रहे हैं. But if you see it in Hindi, it's called Vishad Yog, right? जैसे second chapter is the summary of Sankhya Yog. हिंदी में it's Sankhya Yog. Third chapter is Karma Yog, फिर ज्ञान योग, ऐसे चलता जाता है. It's all about yoga, right? The first one is called, what is it called? What is it called? Vishad. What is it called? Can you repeat that? Vishad Yog. You know what Vishad means? Anybody knows what Vishad is? Pain. Yeah, it's pain. It's basically a dilemma, right? A dilemma in your heart, right? आपके हृदय में एक असमंजस है, right? And वो असमंजस विषाद व्यक्त कर रहे हैं. अर्जुन is expressing that dilemma to whom? Krishna. He is connecting to Krishna. योग का मतलब क्या है? Connection. So first chapter is Vishad Yog, second is Sankhya Yog, third is Karma Yog, fourth is Jnana Yog. ऐसे सारे योग चल रहे हैं, right? In all these different chapters, you're still connecting back to Shri Krishna only. योग का मतलब है connection of the soul with the super soul. Here, soul is us, Jivatmas, super soul is Shri Krishna. Is this okay to understand? Yes? Are you all awake? Yeah? Are you all thinking of Garba, Navratra weekends? No? You're okay? Yeah? We'll do all of that, but while thinking of the Lord. Yeah? So to think of the Lord, we're connecting with the instructions of the Lord. Yeah? So Vishad Yog का मतलब है कि अर्जुन जैसा पर्सन एक्चुअली वो अर्जुन ही क्यों क्वालिफाइड है गीता सुनने के लिए? Why is अर्जुन क्वालिफाइड टू? वो दुर्योधन, सबसे ज्यादा जरूरत गीता की किसकी है? दुर्योधन को है ना. दुर्योधन को क्यों नहीं जाके सुना रहे हैं भगवान? अर्जुन को क्यों सुना रहे? वो तो भक्त है. क्योंकि अर्जुन को जानना था. First eligibility is that I want to know. Krishna will not tell anybody. किसी भी एरे गहरे के पास जाके नहीं बताएंगे कि अच्छा तुम्हें मैं बताता हूँ. आपको भी आके कोई एरा गहरा कुछ सुनाने लगे कि मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, आप क्या बोलोगे उसको? What are you gonna say to him? One second, who are you? Who are you talking to me? Why are you talking to me? तू होता कौन है मुझे बताना, right? Unless I'm actually receptive and ready to take something, I will never take it from anybody. Even if भगवान आके मुझे कोई आके, हम पेरेंट्स के साथ किया है कि नहीं किया हमने ऐसा? Yes or no? 3 generations sitting here and all of us are saying yes. Yeah? 4 generations. दादी माँ भी बैठी हैं यहाँ पे, right? 4 generations are sitting here. हम सब क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं कि हाँ हमने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे किया. कि पेरेंट्स कुछ बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए, पता है हमारे अच्छे के लिए, कि हम क्या बोलते हैं? नहीं सुनना, I don't want to hear. Until that day when I actually want to
hear it, right? So Krishna, first eligibility, as Mataji said, is that he was seeking help. In desperation he is seeking help. Desperation की भी जरूरत है, urgency की भी जरूरत है. विषाद, अर्जुन जैसा, अर्जुन is a person who even in his grief is going back to whom? Shri Krishna for direction. Hence, he is the ultimate example of how to actually approach Shri Krishna and how to actually take in the knowledge of the Gita with urgency, knowing that this world is a lot of things without Krishna is causing me grief. I need to go to the instructions of Krishna and take it to end this grief. Yeah. So first chapter is Vishad Yoga. Second is Sankhya Yoga, or in English it is written summary of the contents of the Gita. Yeah. Sankhya Yoga का मतलब है कि it basically tells you what is matter and what is spirit, right? By telling you that what is not spirit and what is matter. उसमें श्री कृष्ण सबसे पहले क्या बताते हैं? After Arjun accepts Krishna as Guru in 2.7, 7th श्लोक में कृष्ण को गुरु मान लेते हैं अर्जुन, and then उसके बाद what is he saying? He tells him the first thing is identity, that who are you. ये सारा विषाद करने के बाद, grief करने के बाद, imagine what is the answer that he is starting with. What is the starting point of the answer? हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, शायद हम 18 चैप्टर पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस स्टार्ट पॉइंट से श्री कृष्ण अर्जुन को सोल्यूशन बताना शुरू करते हैं, हम शायद उसके आगे निकल के विल जस्ट गो फॉरवर्ड एंड बी लाइक, हाँ वो मुझे पता है, I know all of that, but now I have reached chapter 9, chapter 10, chapter 12, chapter 18, right? But we will not be able to really apply chapter 9, 10, 11, 12, 18 unless we can apply chapter number 2. What is Krishna saying? The basic thing that we keep hearing again and again, we have heard again and again, we are not this body, we are soul. अब हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी बता रहे हैं श्री कृष्ण, दैट हम क्या हैं? स्पिरिट है. स्पिरिट कैसी है? स्पिरिट को ना मारा जा सकता है. स्पिरिट इज एटर्नल. तुम पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे. इसको ना धोया जा सकता है, ना गीला होगा, ना ये जलाया जा सकता है, ना इसको मारा जा सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट, राइट? एंड देन ही टॉक्स अबाउट कि एक्चुअली तुम्हारी ड्यूटी क्या है, दैट तुम्हें स्पिरिट के लेवल पे रह के मैटर के वर्ल्ड में आपको ड्यूटी करनी है. दिस इज चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 3, in which we are on right now, is called Karma Yoga. Karma Yoga, in which he basically first the question that actually how many sections does the third chapter have? How many sections? 4. How do you remember that? The acronym that by which you remember it is TREE. T stands for Tyag. R stands for rungs of the ladder. E stands for and another E stands for enemy of the soul. In the first section, what is he talking about? पहले सेक्शन में थर्ड चैप्टर के अर्जुन ये सारी बातें सुनते हैं, सांख्य योग के जो सॉल्यूशंस बताए हैं श्री कृष्ण ने, उसको सुन के क्या कहते हैं? अच्छा स्पिरिचुअलिटी करनी है, मैं सब कुछ, लेकिन आप मुझे लगा आप सब कुछ त्यागने को बोलोगे स्पिरिचुअलिटी, लेकिन आप कह रहे हो स्पिरिचुअलिटी करनी है और आप मुझे कह रहे हो लड़ने के लिए. यू आर टेलिंग मी टू डू माय ड्यूटी. हाउ इज दिस अ गुड डीड? ही इज टॉकिंग अबाउट इन द सेकंड चैप्टर. बेसिकली ही टोल्ड हिम दैट आप इस मटेरियल एंटेंगलमेंट से क्या हो जाओ? बाहर हो जाओ. डू यू ऑल रिमेंबर दिस? हमने डिस्कस किया था गुड डीड, बैड डीड. यू रिमेंबर दिस कि अगर हम कर्मा साइकिल हमने डिस्कस किया था कि अगर इफ वी डू गुड डीड्स व्हाट हैपेंस? वी गेट गुड results. This is the karma
part that we had discussed. If we do bad deeds, what kind of results do we get? Are you all here? Yes? You need to be louder. Is that okay? Good deeds lead to? Bad deeds lead to? Yes. So Arjun is so कृष्णा ने अर्जुन को क्या बोला? कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम्हें अगर रिजल्ट्स मिलेंगे तो तुम इस मटेरियल वर्ल्ड में एंटेंगल्ड रहोगे. That's what he told him, right? He told him that to get good results, you'll have to stay in this world because जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो कहाँ मिलने हैं? यही तो मिलने हैं. और बैड रिजल्ट्स मिले तो कहाँ मिलने हैं? यही मिलने हैं. तो कृष्ण ने बोला कि मटेरियल वर्ल्ड में एंटेंगल्ड रहोगे तुम. तो अर्जुन का कंक्लूजन क्या था कि अगर मुझे रिजल्ट्स नहीं चाहिए तो मटेरियल वर्ल्ड में एंटेंगल्ड नहीं रहना है तो मेरे को ये जीरो करना पड़ेगा. ये जीरो करने हैं तो मुझे क्या जीरो करना पड़ेगा? व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस इक्वेशन? ये जो डीड्स हैं आर जीरो करने के लिए मुझे क्या जीरो करने पड़ेंगे? इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? यस और नो? तो ये कंक्लूजन उन्होंने सेकंड चैप्टर में ले लिया था और वो खुश थे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में क्या बोल रहे थे अर्जुन कि मुझे what does he not want to do? Does not want to fight. By the end of second chapter, what is he concluded? That उनको deeds क्या नहीं करनी है? नहीं करनी है. Yes or no? Hare Krishna. Is everybody with me? Yes? ठीक है. तो deeds नहीं करनी है तो results नहीं मिलेंगे. But Krishna is saying this is not true. तुम्हें deeds तो करने पड़ेंगे because deed नहीं करोगे तुम्हें bad results मिलेंगे ही मिलेंगे. Because you not doing your duty is actually not a zero deed, it's actually a bad deed. You as being the protector of this society of dharma, you being in that position, if you don't do your duty, आपको वैसे भी क्या लगेगा? पाप लगेगा. Is this okay to understand? Yeah? So that's what he told him and then he starts to explain कि तुम्हें त्याग नहीं करना है, तुम्हें अपने डीड्स का त्याग नहीं करना है, तुम्हें डीड्स के रिजल्ट्स का त्याग करना है. When you do your deeds without attachments to the results, that is the best. That's what he's saying. यहाँ तक अभी ये बात करी है उन्होंने. Is this okay to understand? Yeah? How do you do that? And then उसके बाद sacrifices की बात कर रहे हैं. He is basically talking about a lot of sacrifices. He's saying that in this anybody, if someone can read the translation of this verse, 13th verse. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Yeah, what is he saying? सबसे पहले क्या करना होगा आपको? फूड को क्या करना पड़ेगा? Whatever you do, आप जब सबसे पहली बेसिक जो चीज है, when we earn anything, when we do anything, why are we doing that? What is the most basic need of our existence? Food, right? So whenever we are doing something, the most basic need that we are fulfilling is food. So he's starting our sacrifice with food. He's saying that as the result or as the resource of all of our deeds, the result of our deeds, the most basic result of our deed is, what are we earning for? Food. So he's saying if we earn for food, if we don't offer food and if we eat it, we are doing our duty and we will get our result. And because we will get a result, we will get entangled in our material world. To break this cycle, the first thing that you do is what? अगर आप जो deed करते हो, what do? You offer your food. You break this cycle then. Automatically, you're still eating. It's not like you earned for your food. Food आया आपके पास. ऐसा नहीं है कि आपने food त्याग दिया. आपने त्याग नहीं करा. लेकिन उसी रिसोर्स को आपने क्या किया? भगवान को ऑफर किया एंड फिर आपने ग्रहण किया. इसमें सैक्रिफाइस किया हुआ. व्हाट इज द सैक्रिफाइस इन दिस? व्हेन यू ऑफर फूड टू द लॉर्ड, डज ही टेक सम आउट ऑफ इट? इफ ही डिड, वी वुडंट ऑफर एनी फूड. कहीं भी आप देखोगे भोग ही नहीं लगता. अगर भगवान ने लेना शुरू कर दिया उसमें से, लोग ऑफर करना बंद कर देंगे, राइट?
भगवान उससे से नहीं लेते, यस और नो? या पाते जरूर हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मटीरियली वो जो मैटर हमने दिया है वो मैटर उसमें कम नहीं होता, यस और नो? या सो जो मैटर हमने ऑफर किया, हमने इसमें सैक्रिफाइस किया, जो दिया उतना ही तो मुझे वापस मिला, इसमें सैक्रिफाइस क्या? व्हाट इज द, व्हाई इज दिस पुट इन हियर? व्हाई इज कृष्णा सेइंग दिस? व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? यस, फर्स्ट सैक्रिफाइस इज दिस, कि आप अगर ऑफर करके खाने की बात करोगे कि मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, जो खाऊंगा मैं ऑफर करके खाऊंगा, तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा, कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज नॉट सेइंग दिस हियर, यहाँ पे वो चीज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या क्या चीजें ऑफर होती है वो बहुत वो भी स्क्रिप्टेड है, प्रिस्क्राइब्ड है। वो मांस, मच्छी, मदिरा, तामसिक चीजें नहीं लेते हैं, he does not take it. You can only offer things to him which are sattvic in nature, or at least not extremities of sattva, tamo and rajogun, right? You understand what I'm saying? तो ऐसे ही चीजें उनको ऑफर होती है, वो भी तुलसी के साथ, वो उसी को ग्रहण करते हैं। तो सैक्रिफाइस नंबर 1 ये हुआ कि मैंने अपनी डाइट किसके डाइट के साथ अलाइन करी है? भगवान के साथ। हमें लग सकता है बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, लेकिन नवरात्रों में पूछिए हम सब से कि ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है। टुडे Zomato was opened and everything, all restaurants had no onion, no garlic, no onion, no garlic, no onion, no garlic options. You understand what I'm saying? We recently went on a travel. I ate triple the amount of food than I usually have at home. I went out, yet I could get food. What is the sacrifice in this? But yet there is some alignment. So एक तो ये वाला alignment है कि आपने फिर भी कुछ चीजें वर्जित करी, ठीक है? ये है sacrifice number 2. और क्या sacrifice है? और क्या sacrifice है? या टाइम और एनर्जी आपने लगाया, एटलीस्ट भगवान के प्लेट को प्रिपेयर करने में तो लगाया होगा ना। वो आइडियल मेंटालिटी ये है कि भगवान को जो पसंद है मैं वो बनाऊंगा या बनाऊंगी। एंड जब बनाते हुए, इवन यू नो वेयर डेटी वर्शिप स्टार्ट्स फ्रॉम, इट डजंट स्टार्ट इन द ऑल्टर, इट स्टार्ट्स इन द सब्जी मार्केट। इट स्टार्ट्स इन द सब्जी मार्केट, बिकॉज आप सब्जी खरीदते हुए ये सोचोगे कि मैं सड़ी हुई सब्जी, चाहे जितनी चीप मिल रही हो, लेकिन मैं सड़ी हुई सब्जी इन सीजन फ्रेश प्रोड्यूस मैं लूंगा या लूंगी। क्यों? बिकॉज इट हैज टू बी ऑफर्ड टू द लॉर्ड। दैट्स व्हाई माय कॉन्शियसनेस हैज चेंज्ड। आई बाय इट, आई कम टू द क्लीनलीनेस, मैं मेंटेन करूंगा, किचन को बहुत अच्छे से क्लीन रखूंगा। क्यों? क्योंकि किचन इज अ पार्ट ऑफ माय ऑल्टर, वहां भगवान की रसोई है, भगवान की रसोई है ना, तो आई कीप इट वेरी क्लीन, दैट्स माय एफर्ट। व्हेन आई एम कुकिंग आई विल बी थिंकिंग ये किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। व्हेन आई ऑफर इट, व्हाट एम आई थिंकिंग? I'll offer it without tasting, without eating. I'm offering it first, right? This is an effort. This is a meditation. While initially it might be very mechanical, हम नहीं सोचेंगे भगवान ने, अच्छा मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा कहाँ कैसे बना सकते हैं, नो ऑनियन नो गार्लिक, उसको बनाएंगे और क्योंकि मुझे खाना था पिज्जा, फिर मैं पिज्जा ऑफर करके खुद खाऊंगा। दैट्स अ स्टार्ट। बट धीरे धीरे, बिकॉज इसी प्रैक्टिस को मैंने किया है, धीरे धीरे मेरी कॉन्शियसनेस ऐसी इवॉल्व होगी कि एक दिन मैं ये सोचूंगा, मुझे नहीं, भगवान के लिए क्या पसंद है, व्हाट कैन आई मेक फॉर देम। It's a step-by-step process. Krishna is okay with that, right? So this is the sacrifice. It starts with here. Text 14 से हम आगे बढ़ेंगे। This is a very nice one. It talks about, it solves our sustainability problem. In fact. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो
यज्ञा कर्म समुद्भवः। हिंदी में अगर किसी के पास हो, है किसी के पास? सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियमित कर्मों से उत्पन्न होता है। Yes, it's a cycle. अन्नाद भवन्ति भूतानि, right? यहाँ पे अगर मैं ये इसको बोलते हैं हार्मनी साइकिल. If you can remember this, this is very nice. It's called harmony cycle. कि हम इस नेचर के साथ हार्मनी में कैसे सबसिस्ट कर सकते हैं. अगर ये हार्मनी साइकिल फुलफिल्ड रहे तो एवरीबॉडी स्टेज हैप्पी, राइट. अगर ये हार्मनी साइकिल ब्रेक हो जाए देन देयर इज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन लाइफ, राइट. सो अन्नाद भवन्ति भूतानि. भूतानि मतलब लिविंग एंटिटीज, राइट. सो लिविंग एंटिटीज जो हैं उनको भूत या जीव बोलते हैं, तो मैं जीव लिख रहा हूँ यहाँ पे. सो जीव क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं. सो आई एम जस्ट गोना राइट फूड और resources, but I'm just gonna write food, or which are produced from, actually I'll write it like this कि ऐसे खा रहे हैं हम. और फूड कैसे आता है? रेन से आता है. रेन कहाँ से आता है? क्या लिखा है? which are produced from rains. रेन, यहाँ तक तो समझ आ रहा है कि जीव किस क्या क्या खा के रहते हैं? फूड खा के रहते हैं. फूड कैसे ग्रो होता है? रेन से ग्रो होता है. अब आगे जो कह रहे हैं which is very weird. What is he saying? Rains are produced by performance of sacrifice, यज्ञ. यहाँ थोड़ी हमारी ट्रेन डिरील हो जाएगी. What is this? मोदी जी भी बोलते हैं. Sorry? मोदी जी also said. He also said this. But what is this? How does rain get produced? Anybody knows the water cycle here? Rain कैसे आता है? Evaporation. ओशन है. ओशन से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा. कि कौन इवेपोरेट करेगा? Heat. सन करेगा ना. सन से इवेपोरेट हुआ, और इवेपोरेट होने से क्या हुआ? क्लाउड बने. फिर क्लाउड से क्या हुआ? Precipitation. वो उधर पानी भर गया. पानी भर के फिर वहीं बारिश हो गई. नहीं, कहाँ बारिश होती है? जमीन पे. हर जगह. जमीन पे नहीं ब्रो, हर जगह होती है. पानी पे भी होती है. वो क्लाउड्स ट्रैवल जहाँ जहाँ करते हैं वहाँ वहाँ पानी बरसाते हुए जाते हैं. ठीक है, पानी बरसता है. फिर उसके बाद क्या होता है? साइकिल कंप्लीट करो. फूड ग्रो होता है. वाटर का क्या होता है? वाटर सारा वापस थोड़ा ओशन में बह जाता है. इज इज ओके टू अंडरस्टैंड? इसमें थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी जिससे भगवान का दिमाग हमें दिखता है कि व्हाट अमेजिंग ही डज. बारिश का मौसम सिर्फ 2-3 महीने 4 महीने रहता है, राइट. बट पानी हमें पूरे टाइम मिलता है. हाउ? अगर हमें घर में कुछ लाते हैं हम और उसको हमें स्टोर करना होता है तो हम कहाँ स्टोर करते हैं? फ्रिज में, फ्रीजर में. हमारा फ्रीजर कहाँ है? हिमालय में, माउंटेन्स में है, ग्लेशियर्स में है. सो ऑल द वाटर गोज देयर, गेट्स फ्रोजन एंड थोड़ा करके पूरे साल वहां से पानी आता है हमारे पास. Isn't that beautiful? Very beautiful, right? Krishna's made this happen. But इन सारी चीजों में वाटर साइकिल में हमें यज्ञ तो बताया नहीं साइंस वालों ने, राइट. Where is this यज्ञ coming from? अब I have a question for you. वाटर साइकिल तो मेरी समझ आ गया, ठीक है. तो कभी कभी रेन कम होती, कभी कभी रेन ज्यादा होती. ये कहाँ से हो रहा है? अगर वाटर साइकिल वो पूरा हमें पता है, ये रेन कम ज्यादा क्यों हो रही है? Why is this happening? What is that dependent upon? दिक्कत होती है कि नहीं होती है? ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है, कम हो तो, अनटाइमली हो जाए तो, टाइम पे ना हो तो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम तो बहुत है. परफेक्ट होना चाहिए तभी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है. तो इसका मतलब प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. यस और नो? या बिकॉज ways in which it can go wrong are more than ways it can go right. Is that okay to understand? Yeah. Then if that is the case, we should be worried and we should be thinking about it. What are we doing about it, and where is this yajna coming from? How does this fit in?
पावर ऑफ द मंत्रास, ओके. थोड़ी करते हैं. हाँ, हम नहीं करते हैं. नोबडी इज डूइंग. साधु करते हैं. यस यस माता जी. Krishna's mercy. Our efforts in His mercy, yeah. But where is this? अगर अभी बारिश हो रही है, सब खाना खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, ये वाला पार्ट भी ऐसे चल रहा है, राइट? तो ये कहाँ हो रहा है? अगर ये नहीं हो रहा है, हम तो नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, तो मानसी करी, मैं भी नहीं कर रही, पता नहीं कौन कर रहा है. साधु पंडित लोग कर रहे हैं. Yeah. Who is doing this? Who is doing this? Our karmas? Oh, that's important. That's nice. Our karmas. That means ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है. अगर साइकिल है, you understanding what I'm saying? अगर साइकिल है तो it's refueling itself. बट साइकिल का एक पार्ट हमने हटा दिया है, तो इसका क्या मतलब है? It is not refueling itself. It is depleting itself. This is the reason why when we say that we are not offering back to the Lord, it is sin. It is sin. We are just अपने जो कर्म है उसको हम deplete out कर रहे हैं. This is one. But yajnas, as Mataji is saying, yeah, sadhus are there who are doing this. Sadhus are there who are doing this. That is why still rains are happening and this is happening. But still, if you see right now, is climate change affecting us? Is our food as healthy as it was? So ये जो अन्नात् भवति भूतानि है, ये ठीक से जितना हम खाते हैं उतना नरिशमेंट हमें नहीं मिलता. The quality of food is bad. Yes or no? Yeah. The quality of food is bad. The quality of rain is bad. It is inconsistent. Sometimes it is fine. Sometimes it is not. Is this okay to understand? And this is just the start of Kali Yuga, जहाँ पे यज्ञ अभी बंद हुए हैं. In the last 5,000 years, there are 4,17,000 years more to go. जहाँ यज्ञ करने वाले कम होते ही जाएंगे और. And that is the reason why it is written that rain will keep going down, and in turn food will keep going down. At the end of Kali Yuga, there will be no food. People will eat each other. That is what is being said in the Bhagavatam as well, right? Because there's going to be no rain, because there's no yajna happening, because there's no rain. What? There's not going to be any food. Because there's not going to be any food, what is the jiva going to eat? Other jivas. This is the whole cycle that is being talked about. We'll talk more about yajna, but let's just complete this cycle first. Rains are produced by performance of yajna, and yajna is born of prescribed duties. Who does prescribed duties? क्या बच गया? Yes. Yeah. Who does prescribed duties? The jiva does prescribed duties. This is the harmony cycle. If अब अगर यहाँ से हमने शुरू किया, अब इसको यहाँ से देखते हैं. जीव जो है, जो हम सब हैं, अगर हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करें, हम अपना धर्म निभाएं. धर्म मतलब रिलीजन नहीं, प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो हमारी एक्चुअल ड्यूटी है, जो सेकंड चैप्टर में कृष्ण हैज टॉक्ड टू अस अबाउट स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, बोथ ऑफ देम. इफ वी डू दैट, देन दैट विल रिजल्ट इन यज्ञ. यज्ञ अपने आप होगा, बिकॉज प्रिस्क्राइब ड्यूटी में यज्ञ क्या होता है? इंक्लूडेड होता है. सो वंस यू, फॉर एग्जांपल राइट नाउ, अर्जुन का क्या सैक्रिफाइस है? What is Arjun's sacrifice? To do his duties. He do his duties even if he does not want to do it. He has to sacrifice on the level of ego. That is what is being told to do right now, because he is saying तुम्हारी ईगो या आइडेंटिटी जो है वो तुम्हारी ये बॉडी नहीं है. तुम जो तुम ये कह रहे हो कि ये मेरे लोग हैं, मेरे ये हैं सगे संबंधी, ये सब क्यों सोच रहा है? तू क्या है? क्षत्रिय है. क्षत्रिय का धर्म क्या है? धर्म की रक्षा करना. सो दैट इज हिज सैक्रिफाइस, कि वो अपने मन की बात ना सुन के वो धर्म की बात करे. दैट इज हिज यज्ञ. इफ दिस यज्ञ इज डन बाय ऑल वर्णास, व्हिच इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, देन ये पूरा हार्मनी साइकिल ठीक रहता है.
लेकिन अब ये हो नहीं सकता क्योंकि ना कोई ब्राह्मण बचे ना क्षत्रिय बचे, बस जन्म के हैं, जन्म के बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन कर्म से कोई ब्राह्मण छोड़ो, क्षत्रिय वैश्य भी नहीं है, हम सब क्या है, एट बेस्ट क्या है, शूद्र है एट बेस्ट, बट हम शूद्र भी नहीं है, बिकॉज अगर आप शूद्र के भी क्वालिटीज पढ़ें तो उनकी क्वालिटीज में क्लेनलीनेस, पंक्चुअलिटी, ये सब आती हैं जो हम में नहीं है, सर्विट्यूड, एटीट्यूड टू सर्व समवन, हमें नहीं है ये सब. वी आर नॉट शूद्रास आल्सो, वी आर एक्चुअली आउट ऑफ द वैदिक सिस्टम. So that's the reason why right now yajna is not happening. We are not doing our prescribed duties. The Yuga Dharma or yajna for this particular age is something that we did right now. अभी हमने क्लास से पहले क्या किया? संकीर्तन. संकीर्तन यज्ञ is actually श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक भी ये कहता है कि एक्चुअली कलियुग का जो यज्ञ है वो एक ही है. That is Sankirtan Yajna. If we do that, then we are actually preserving this harmony cycle. Any doubts here? If we actually break this, we are harming the environment. अगर आप देखो, we are not doing yajna. In fact, we are not giving back to nature. We are just taking from nature. Yes or no? Yeah. So when we just take from nature, we are harming nature. We are depleting nature. बट नेचर बीइंग द नेचर किसकी एनर्जी है? भगवान की एनर्जी है. व्हेन शी रिटेलिएट्स बैक वी कैन नॉट टॉलरेट इट. हमसे सहा नहीं जाता वो, बिकॉज शी इज टू पावरफुल, बिकॉज शी इज लॉर्ड्स एनर्जी, राइट? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. बट दिस इज द होल साइकिल जिसको हमें प्रिजर्व करके रखना है बाय डूइंग आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी. राइट नाउ आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आर एज डिवोटीज of the Lord, we have to do Sankirtan Yajna, right? That is our prescribed duty. Our prescribed duty is to do 4 regulative principles, chanting our rounds, and that's our Yajna. So any doubts here before we move on? Right now we are actually in this section, rungs of the ladder, because कर्म योग की बात हो रही है. कर्म योग ये कुछ भी नहीं है, कर्म योग है. आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के जो आपने रिजल्ट्स हैं उसको आपने क्या करा है? सैक्रिफाइस करा है. उसके सैक्रिफाइस से ये सारा जो हार्मनी साइकिल है चल रहा है. इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? ये कर्मयोग का हार्मनी साइकिल. या एनी डाउट्स हियर बिफोर वी मूव ऑन? यस अंकल. Yeah. Prescribed duty for us because it's for example duty हमारी दो है अंकल, spiritual and so उस way में it is our prescribed duty. It is our prescribed duty. नित्य धर्म, yeah. नित्य धर्म और स्वधर्म में ये नित्य धर्म है हमारा, yeah. To get educated about it is actually the first part, initial part, and then to follow it. Can I move on? Yes? Okay. 15th shloka. Karma brahmodbhavam viddhi brahmakshara samudbhavam tasmat sarvagatam brahma नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम. हिंदी में अगर कोई इसको पढ़ना चाहे. वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए. फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. He is basically saying A equal to B, B equals to C. He is saying कि वेदों में क्या लिखा है? वेदों में हमें बताया गया है कि हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है. वेद कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं. तो अगर वेद भगवान से आ रहे हैं और वेदों में रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स रखिए, तो ये जो सैक्रिफाइस है व्हिच इज रिजल्ट ऑफ योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, द रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स, दे आर नथिंग बट कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड.
right? So if I have to put another arrow here, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये वेद, ये कहाँ से आ रहे हैं? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कहाँ से आ रही हैं? वेदों से आ रही हैं. So this whole cycle, right now Krishna is not saying this directly because अभी 3rd chapter में 18 chapter में से he just starting to tell Arjun. तो भगवान अपने बारे में नहीं बता रहे, भगवत्ता के बारे में. He's not talking about bhakti yoga as much. He's just talking about activities and sacrifice, etc. He's coming on the first step, right? तो first step में अगर हम बात करें तो he's saying वेदों में लिखा है और वेदों से ये सारी चीजें आ रही हैं. And he's giving a little hint that all pervading transcendence. He's not even saying me or God or anything. He's just saying all pervading transcendence. कह रहे हैं. हिंदी में क्या लिखा है इसके बारे में? all pervading transcendence. सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा. सर्वव्यापी ब्रह्म. He's basically saying that. He's being very vague about himself. हाँ, Prabhupada is telling us that who ये सर्वव्यापी ब्रह्म कौन है उसके बारे में प्रभुपाद हमें पॉपट में बता रहे हैं. Because Prabhupada what he's doing is he is not if someone just stops here, अगर कोई यहाँ पे रुक जाए तो पता ही नहीं लगेगा उनको कि सर्वव्यापी ब्रह्म क्या था. उनको लगेगा कि सर्वव्यापी ब्रह्म से ये सारा कुछ चल रहा है, मुझे सर्वव्यापी ब्रह्म से कुछ करना होगा बस. But Srila Prabhupada is not taking that chance. He is telling us right now the essence of what has been told in the 18 chapters. He reads the 18th chapter for us, and each chapter, each verse, from that lens of the essence of the Gita, he is telling us. So, Krishna is not telling us right now, but Prabhupada is giving us that information. That this ये सर्वव्यापी ब्रह्म श्री कृष्ण ही है, जो अभी later he is going to talk to us. But basically, all of this is coming from God only, from Krishna only. Yeah. Next shloka 16. एवं प्रवृत्तितं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तायति ह्यः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति. हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है. ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ जीवित रहता है. He in just this one verse, he is defining our life. ये हमारी लाइफ है, हम सबकी लाइफ है. In fact, the whole world. This is the sad state of the world right now. जो थर्ड चैप्टर में श्रील प्रभुपाद calls भगवद गीता the ABCD of spirituality, the very basics of spirituality. Anybody who does not know this has not even entered the realm of spirituality, right? But ये basic चीज़ भी हमें इतनी शॉकिंग लगनी चाहिए. अगर नहीं लग रही है तो हमें ये इतनी शॉकिंग लगनी चाहिए. भगवान खुद अपने मुख से क्या कह रहे हैं? He is basically saying, my dear Arjun, one who does not follow in this human life in the cycle of sacrifice, thus established by the Vedas, certainly, he says certainly, right? He says certainly leads a life full of sin. How is this? ये कैसे है कि जो ये sacrifice नहीं कर रहा है वो पाप कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? How is that possible? अगर आप सोचो लाइफ में in this whole world current situation, if someone is not following a Vedic cycle, Krishna is being very harsh. He's basically saying he's leading a life of sin. पाप की जिंदगी जी रहा है. Is he being very harsh on us? Is he being negative, or what is he? Why is he saying this? Actually, the intention और जिस टोन से अर्जुन को बोल रहे हैं वो harsh way में नहीं है. It's not a harsh tone. ये अनुकंपा की टोन है. You want to understand anukampa? Compassion. He is someone who has the third person view. पूरे वर्ल्ड को, पूरे सृष्टि को वो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और वो देख रहे हैं कि हम सभी के सभी वी आर गोइंग इनटू हेल. हम खुद ब खुद वॉलंटरली वॉकिंग टुवर्ड्स आवर ओन डूम. सो ही जस्ट आउटसाइड, स्टैंडिंग आउटसाइड, ही जस्ट ट्राइंग टू he's just trying to appeal to us that listen, don't do this, you're going the wrong way.
you're going the wrong way. And he's saying this to Arjun. He's not saying this to anybody else. He's like, I know nobody is going to listen to this. I'm God. We have made God helpless. God is saying नहीं कर सकता मैं इनका कुछ. God is saying. इस वे में हमने भगवान को हराया. नेगेटिव, उल्टे वे में. भगवान भी अर्जुन नहीं बोलते, इनका नहीं कुछ हो सकता. अर्जुन को बोल रहे हैं. लेकिन अर्जुन के साथ ये जो वार्तालाप है, दिस कॉन्वर्सेशन है, उसको सुन के तो अगर कोई सीख ले फिर भी बहुत फायदा है. इसीलिए ही इज सेइंग दिस टू अर्जुन, बिकॉज देन ही विल सी दैट एटलीस्ट समवन विल सी दैट आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड. why will I lie to this person? Why will I want this person to be harmed? It's like उस कमरे में दो लोग बात कर रहे हैं और हम बाहर कान लगा के सुन रहे हैं, तो हमें पता है कि जो अंदर बात हो रही है वो सच बात हो रही है, तो इससे मैं अपना फायदा उठाऊं. This is exactly what he is doing. He is telling him the truth कि at least right now people will agree that what I am saying is right. But how is this possible? Like, just to logically understand and accept it, why do you think it is a life of sin? Without doing this, why is it a sin? How is it so bad? किसी का बुरा नहीं करके हम जीते हैं तो क्यों मेरे को पाप क्यों लगे? मुझे क्यों बोल रहे हैं कृष्ण कि मेरी जिंदगी में पाप है? सिर्फ पाप है. He is stealing from Krishna because everything belongs to him and we are just using it without offering it back to him. Is anything in this world free? Is anything in this world free? Yes. What? What is it free? Whatever. Air is free? Air that we breathe is free. आज Sunlight is free. 100 साल पहले हम 100 साल पहले लोग बोलते पानी फ्री होता है. पानी तो फ्री होता है. वो कभी बिलीव नहीं करते इस बात को कि कोई बॉटल में पानी डाल के बेच रहा है. They think this person is crazy to buy, give money to get. अरे पूरे जगत में फैला हुआ है, तो क्या कर रहा है? वो तुझे बोतल में भर के दे रहा है, तू उसको पैसा दे रहा है. पागल नहीं लगेगा कोई? 100 साल पहले की बात है. अब हम सांस की बात कर रहे हैं. एयर. What happened in COVID? We were gasping for breath. सिलेंडर ढूंढ रहे थे हम ऑक्सीजन का. This happened in COVID. Right now, इतनी जल्दी भूल गए हम. This happened in COVID. And now people are, I know companies that fill the bottles with oxygen and they are selling it in China. They're doing it. I'm not kidding. You think watching a sunrise is free? You know what China has done, especially in Beijing? वहाँ पे ना इतना pollution है कि उनको sunrise दिखना बंद हो गया है. Right? Sunrise दिखना क्या हो गया? बंद हो गया. You know what the government का brilliant solution was? They put up an LED screen. बहुत बड़ी LED screen लगा दी और जिस सेम मैच करा दिया कि जब सनराइज होता है ना उस टाइम पे इस पे हम क्या दिखाएंगे? सनराइज होता हुआ दिखाएंगे. लाइव भी नहीं, रिकॉर्डेड. लाइव क्यों दिखाएंगे? वो कहाँ से, वो ऊपर से रिकॉर्डेड. आई एम नॉट किडिंग. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. दिस इज एक्चुअल फैक्ट. You think companionship is free? People are today in this world right now. There's something called mukbang or something like that. I don't know the actual name. People on YouTube खाते हुए अपने आप को लाइव स्ट्रीम करते हैं. वो कुछ नहीं कर रहे, अपना डिनर लंच खा रहे हैं. They live stream it ताकि बाकी लोग उनके साथ अपना खाना खा सके, क्योंकि उनके पास खाना खाने के लिए साथ में बैठने के लिए कोई नहीं है. एंड दे पे देम कि तू अपना ये बंद मत करना भैया, ये ले पैसे दे. आई एम मेकिंग मनी टू लाइव स्ट्रीम टू ईट बिकॉज द अदर पर्सन डज नॉट हैव अ कंपेनियन टू ईट विद. व्हाट इज फ्री? इज एनीथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड? नथिंग इज फ्री. येट द एयर वी ब्रीथ, the water we get, the sunlight we get, are we paying any tax for it? We may be paying some tax here and there to the government, but what tax are we, who are we getting all of this from? Right now God भी नहीं, छोड़ो, God अपनी ही बात नहीं कर रहे हैं. God भी अपना नाम नहीं ले रहे. शर्म
के मारे कि मैं अब अपना नाम ले लूंगा तो अभी भाग जाएगा, ये नहीं लूंगा अपना नाम. Yes, this is the reason why 9th chapter में जाके अपना नाम लेते हैं कि मैं भगवान, मैं ही हूँ जिसके बारे में इतना देर से मैं बात कर रहा हूँ. I am the one. Talks about 9th chapter. He, you know what he says? All of this coming from nature. ठीक है, ये तो मान सकते हैं गॉड माने ना माने, एथियस्ट ये वो कोई बात नहीं, ये तो मानते हैं नेचर से आता है, ये तो मान सकते हैं नेचर से आता है ना. तो नेचर के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी फ्री नहीं है, चीजें मिल रही है, तो मैं नेचर के लिए क्या कर रहा हूं? व्हाट एम आई डूइंग फॉर नेचर इन रिटर्न? आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट? आई एम जस्ट टेकिंग. इफ आई एम जस्ट टेकिंग, आई एम अ थीफ. मैं चोर हूं. और हार्मिंग, अब तो टेकिंग भी नहीं है, ग्रीडी, टेकिंग मोर देन व्हाट इज माइन, होल्डिंग. तो आई एम अ थीफ. एंड इफ आई एम अ थीफ, मुझे क्या लगेगा? पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? पाप लगेगा. सो दिस इज, ये जो कर्म योग का लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है कि एटलीस्ट हम ये तो एक्नॉलेज करें कि ये सारी चीजें मुझे कहीं और से मिल रही हैं. ये तो एक्नॉलेज तो करें कि सम हायर पावर, एटलीस्ट नेचर की ही सही, वहां से मिल रही है. ये तो एक्नॉलेज करें. भगवान छोड़ो, some higher power is giving it to me, can I acknowledge that and say thank you and give something back? That's nothing but karma. Is the first level towards God. Because other than that, I am just thinking I earned this, I deserve this, this is mine to take. That is the mentality of an animal. Not even an animal, animal से भी बदतर, demon. You understand what I'm saying? एनिमल को क्या लगता है? उसको लगता है ये पड़ा है, ये मैं खा लेता हूं, बस. आपने कभी देखा है कबूतर को? मैं रेलिंग पे ना कबूतरों को देखता हूँ, फनी लगता है मुझे. इट्स लाइक एन एंटरटेनमेंट फॉर मी. क्या करते हैं वो कबूतर? एक बैठा होता है, रेलिंग है, पूरी रेलिंग है, दूसरा आके एक कोने दूसरे कोने में बैठता है. ये वाला कबूतर जो बैठा होता है ना, वो उस कबूतर को देखता है, भागते हुए ऐसे ऐसे करके जाता है, दूसरे उसको भगाता है वहां से. जहां से वो वहां बैठा था, वहां एक और कबूतर आके बैठ जाता है, तो उसको देखता है, मेरी रेलिंग है, जाता वहां जाता है और उसको भगाने की कोशिश करता है, लड़ता रहता है पूरे. अरे तू बैठा था, बैठना आराम से. व्हाट इज दिस मेंटालिटी? भगवान छोड़, देवी देवता हमें देख कैसे करते होंगे? हम बैठे थे, ये तो मेरा था, उससे जाके लड़ लिए, इससे जाके लड़ लिए, ये तो मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है. वो देख के ये क्या है, 100 साल की इनकी जिंदगी है, कल मर जाएंगे, लड़ रहे हैं. हमें कबूतरों की तरह वो देख, हम एंटरटेनमेंट है उनकी. मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बालकनी से वो देख रहा हूँ, मुझे कोई और देख रहा होगा, मुझे कोई और देख रहा होगा. But this is how it is. It's true. So this thing where Krishna is saying that it is sin, it is not just, this is fact number 1 कि हम सिर्फ चोरी कर रहे हैं, we're not doing anything back. But even otherwise, वेदों की, who does not follow human life cycle established by the Vedas, it basically means कि मुझे पाप पुण्य, अगर मुझे, even if I have to say कि मैं पाप रहित पुण्य वाली जिंदगी जीऊंगा, I at least first have to know what is पाप and what is पुण्य. वो कहाँ लिखे हैं? Where are they written? In the Vedas. Even if I have to say कि यार मुझे ना ये सब हार्मनी साइकिल से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान से कुछ लेना, मुझे बस अच्छा बन के रहना है. अच्छा बन के रहने के लिए भी एटलीस्ट आई हैव टू नो व्हाट इज अच्छा एंड व्हाट इज, अदरवाइज मैं अपनी डेफिनेशन बना के रखूंगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो दूसरे के लिए शायद वो पूरा उल्टा हो. यस और नो? तो कौन सही कौन गलत, किसके हिसाब से हमें कर्मा मिलेगा, किसके हिसाब से मिलेगा? देयर हैज टू बी सम लॉ बुक. दैट लॉ बुक इज दिस. बिकॉज हमें पता ही नहीं है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो गड्ढे में ही जा रहा है, पक्का गड्ढे में जा रहा है ये. हम पूरी जिंदगी ऐसे वी माइट स्पेंड आवर होल लाइफ थिंकिंग दैट आई एम अ सेंट. मैंने आज तक ना, यू सीन, आई हैव सीन दिस हैपन. ओल्ड पीपल,
when they reach a certain age. Yeah, they start talking. They start talking about this. मैंने ना आज तक किसी का कुछ नहीं बुरा करा तो दूर की बात, चाहा ही नहीं है. Such a bizarre misconception about my own self. But when you die, you go to यमराज and यमराज गिना रहे होते हैं वहां पे, सीसीटीवी दिखा रहे होते हैं हमारे को, चित्रगुप्त. Then we लोग ओ ये तो मैंने अच्छा ये गलत था क्या? I'm asking यमराज only. यमराज only I'm asking ये गलत था क्या? अच्छा मुझे पता नहीं था. Like पता नहीं था? पता लगाना था ना. तुम ह्यूमन फॉर्म यू गॉड, इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंस मिली थी तुम्हें, पढ़ना था कुछ पहले जीने के पहले, फिर जाके जीना था. That we didn't do. Hence here Krishna is very clearly saying that we're really going to sin. What happens? Here he is saying living only. किसके अगर वेदों के मुताबिक नहीं जी रहे हैं तो किसी के मुताबिक तो जी रहे हैं. फलसफा, लाइफ का फिलॉसफी कुछ किसी के बेसिस पे तो है. दिस व्हाट इज द बेसिस? लास्ट लाइन ही सेइंग लिविंग ओनली फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ अ सेंसेस. मेरी आंखों को ये देखना है, चलो देखते हैं. मेरी जीभ को ये टेस्ट करना है, चलो इसके लिए काम करते हैं. आई एम नॉट किडिंग. व्हेन आई सी समथिंग on Instagram that oh my friend who was there, this is how it works. My friend who was there in my college, चलो उसको देखते हैं वो क्या कर रहा है आजकल. वो इस रेस्टोरेंट में जाके खाता है, इस गाड़ी में घूमता है, इस घर में रहता है, ऐसा उसका जॉब है, whatever. Then I also इस थॉट से मुझे क्या फील होता है कि मुझे भी ऐसे करना चाहिए. लेकिन ये सारी चीजें क्या है? सेंसेस के, मेरे सेंसेस बोल रहे हैं कि जो वहां रेस्टोरेंट में मुझे खाना है, वहां रेस्टोरेंट में मुझे खाने के लिए, उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ रुपए लगते हैं. यस और नो? या उस रुपए के लिए मैं फिर क्या करता हूं? काम करता हूं. तो एंड ऑफ द डे मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? अपने जीभ के लिए कर रहा हूं. माई टंग हैज डिक्टेटेड दैट आई वांट टू ईट देयर, आई हैव टू अफोर्ड दैट, हेंस आई एम वर्किंग फॉर द टंग. ये तो एक चीज हो गई, एक डिजायर की बात हो गई. ऐसी कितनी आती है दिन में हमें? वी आर अ स्लेव ऑफ आवर 5 सेंसेस. Yeah, we are taught like that. 100%. Ingrained, yes. That is the nature of Kali Yuga, where you will not be taught knowledge, you will be taught illusion. Here Krishna is saying such a person lives in vain. वो कह रहे हैं इसका जीना क्या है? जीना वेस्ट है. कृष्ण जी ने शायद पहले अध्याय में, पता नहीं 11वें अध्याय में ये बोला है कि मेरे को कैसे लोग पसंद है. या उन्होंने बात करी है इस बारे में. मेरे को अध्याय नहीं Yeah. कि जो लोग मोह माया से दूर हैं, जिनको ये चीजें मेटेरियलिस्टिक Yeah. नहीं पसंद है, योग में तो वो लोग, तो उस हिसाब से तो फिर हम तो सब लोग इसी में जी रहे हैं. इसी में जी रहे हैं. क्या करें? Like in my family, they think that I am wasting my life Yeah. by not eating. Yeah. And, you know, या सी एक तरफ फैमिली, एक तरफ कोई और बोल रहा है, एक कोई नॉर्मल आदमी बोल रहा है कि तुम अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो, और एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि तुम जिंदगी वेस्ट. अब हमें चूज करना है कि हम किसकी माने. ठीक है, किसको पता होगा. प्रभु जी का क्वेश्चन इज दैट ही सेइंग मोह माया से दूर ये वो, राइट, वो वही पसंद है. कृष्णा एक्चुअली सेज, अगर 9th चैप्टर में पूरा पता लग जाता है कौन पसंद है कौन है. ही सेज अर्जुन आई डोंट केयर. मोह माया से दूर का मतलब क्या है? ही डजंट मीन, अर्जुन राजा है, राजा मोह माया से दूर कैसे हो सकता है? राजा के पास मुकुट है, लाइक आभरण है, ऐश्वर्य है, पैलेसेस हैं, एवरीथिंग ही हैज. यस और नो? कैन अ किंग नॉट बी अ डिवोटी देन? किंग हैज टू बी अ डिवोटी. इन फैक्ट the Bhagavatam says a king has to be a devotee, otherwise he is not fit to be a king, administrator. Then what is this dichotomy? What is this dilemma? मोह माया का मतलब क्या है? What is मोह? माया and मोह का मतलब, एक बार, this is the last point that we can take up today, that मोह and माया का definition क्या है? मोह का मतलब क्या है? What is मोह? Attachment and illusion, if you can. Entanglement, right? मोह.
इल्यूजन, इफ यू कैन कॉल इट इल्यूजन। माया का मतलब क्या है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ना जान के किसी और वे में जानना, इल्यूजन, अटैचमेंट इल्यूजन। इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? अटैचमेंट एंड इल्यूजन के बिना आप कह रहे हो कि भगवान को पसंद है, ठीक है? तो इसको थोड़ा समझते हैं। अटैचमेंट का क्या मतलब है? लाइक कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, राइट? नाउ व्हाट इज अटैचमेंट? व्हाट इज डिटैचमेंट? डिटैचमेंट क्या हुआ कि ये सारी चीजें मैं क्या कर दूं, छोड़ दूं, ये डिटैचमेंट हुआ? कृष्ण सेज नो। कृष्ण सेज दैट इफ यू नो फॉर श्योर दैट ये रियलाइजेशन आपको है कि ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, आपकी नहीं है, राइट नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम एंड यूजिंग देम इन द राइट सेंस। फॉर एग्जाम्पल अ कैशियर, बैंक का जो कैशियर या टेलर होता है, क्या वो घर जाके खुश होता है? आज ना बैंक में करोड़ों रुपए आए, मैं बहुत खुश हूं, करोड़ों रुपए आए। या बैंक से जो बहुत सारा विड्रॉल हुआ, आज ना बहुत विड्रॉल, लोग विड्रॉ ही करे जा रहे थे, विड्रॉल हो गया बहुत सारा, कैसे वो दुखी और खुश होता है? वो क्या करता है? वो कहता है जो विड्रॉल कर रहे हैं वो उनको मैं विड्रॉल करने में मैं मदद करूंगा, जो इसमें डिपॉजिट करना चाहता है वो मैं डिपॉजिट करने में मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये सारा जो पैसा वो मेरा नहीं है ना। मेरा काम क्या है? जहां विड्रॉल करना है विड्रॉल करवाऊं, और जो डिपॉजिट हो रहा है मैं ऐसा ही हूं, मैं यही हूं, मैं टेलर हूं भगवान का। जो मेरे पास पैसा जो भी आ रहा है, पैसा, धन दौलत, रिलेटिव्स, ब्यूटी, इंटेलेक्ट, सब कुछ, टैलेंट, स्किल, जो भी कुछ मेरे पास है आज, वो मुझे भगवान ने दिया है कि ये संभाल के रख और इसको यूज कर। जहां यूज करना है उसको यूज कर। कहां यूज करना है? भगवान की सेवा में यूज करना है। यज्ञ का मतलब है भगवान की सेवा में यूज करना है, तो उसको यूज करना है। और जिस दिन ये मेरे से हट गया, ओके, क्योंकि भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। मेरे को दुख होगा क्या? ना सुख होगा ना। मेरे को सुख एक ही बात का होगा कि मैंने भगवान का जो पैसा है उस जब आया था तब उसको मैंने अच्छे से यूज किया, और जब चला गया तो आई वाज ओके। ये मेरा सुख है। मैं डिटैच टू, इवन डजंट मैटर मेरे पास है नहीं है, डजंट मैटर, उस पर रिलेटेड ही नहीं है कि मैं अटैच टू डिटैच टू। जिसके पास नहीं है, भिखारी है, वो भी अटैच्ड होता है कि ये मेरा इलाका, मैं यहाँ का भिखारी हूं। होता है कि नहीं होता? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये मेरा ब्रिज है, यहां मैं भीख मांगता हूं। अरे तो भिखारी, तो ब्रिज का मालिक कैसे हो सकता है? ये मेरा ब्रिज का क्या मतलब है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अटैच तो भिखारी भी हो सकता है, वैसे ही डिटैच राजा भी हो सकता है। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट डजंट डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डू नॉट हैव। वैसे ही माया का अगर हम बात करें, ये दोनों रिलेटेड है। माया का मतलब है कि मैं मालिक हूं, मैं कंट्रोलर हूं, ये मेरा इल्यूजन है। अगर ये इल्यूजन ना हो, मुझे पक्का पता हो कि एक्चुअली भगवान मालिक है, भगवान कंट्रोलर है, तो मैं माया में नहीं हूं, आई एम ओके। बट दिस इज इजियर सेड देन डन, बाय द वे, इजियर सेड देन, क्योंकि हम इतने डीप घुसे हुए हैं इस कंट्रोलरशिप में। इट्स वेरी हार्ड टू गेट आउट। देयर इज ओनली वन वे। कृष्णा सेज जस्ट चांट माय नेम्स। कृष्णा सेज चांट माय नेम, bow down to me, do my deity worship, remember me, that's all. If you remember me, I will purify you. हम अपने आप को प्यूरिफाई नहीं कर सकते कि हम बहुत ज्यादा अंदर घुस गए हैं, बहुत जो गड़बड़ है वो बहुत ज्यादा हो गई है, अब ठीक करने लायक नहीं रही। तो एक ही पर्सन कर सकता है जो इम्पॉसिबल, हमें ठीक करना इम्पॉसिबल है, लेकिन भगवान कौन है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करे? वो एक ही है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। हमने इम्पॉसिबल कर दिया है, अब उसको पॉसिबल कौन करेंगे? भगवान ही करेंगे। हमें बस उनके पास जाए। माई ड्यूटी इज नॉट टू क्लेंज माई सेल्फ, माई ड्यूटी इज नॉट टू मेक माई कर्मा जीरो। आई कांट, इट्स टू बिग। all I can do is call out for the Lord and connect back to Him. I cannot do it with karma, I cannot do it with jnana, I cannot do it with dhyan.
I can only do it with bhakti. That's all that I have. That's all I can try. That's my only shelter. This whole Bhagavad Gita is taking us through all of these different intricacies to understand this one single point. कि हम भक्ति से बच सकते हैं. और एक्चुअली अभी हम बचने की बात करें क्योंकि यहाँ पे डर लग रहा है हमें. यहाँ पे हमें डर लग रहा है. लेकिन आगे जाते जाते ये डर ना बदल के प्रेम में बदल जाएगा. I don't care. My motivation to connect back with the Lord right now at this stage, third chapter के stage पे, is that I don't want to be a sinner. मुझे इस गड़बड़ में मैं जो फंस गया उससे क्या करना है, बाहर निकलना है. But later on when I mature in my devotion, the motivation is not negative, coming out of the negative. It is that, oh, Krishna is so attractive, so nice. Yeah, I want to be with this person. I want to spend time with this guy. It's a positive motivation rather than the negative motivation. But it starts here. Then it matures into that. Start is here. लोगों को अगर मार पड़ती है, किसी को मारा, किसी ने आपको मारा, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? क्यों मारा? रीजन पूछोगे ना. हम क्यों नहीं पूछते जब लाइफ में हमें मार पड़ती है, मेरे साथ कुछ होता है, गड़बड़ होती है. यहाँ पे सबके साथ गड़बड़ हुई है लाइफ में और आगे भी होगी. देयर इज नो डिनाइंग दैट. व्हाट इज द क्वेश्चन डू वी व्हाट क्वेश्चन डू वी आस्क? Why me? मैं पूछता हूँ मेरे साथ क्यों हुआ? Why me? Is it okay to understand? Why me? I don't ask why this happened to me. I say why me? मेरे साथ क्यों हुआ? उसके साथ हो जाता. धप्पा हटाने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ. Somehow just get it over. मेरे साथ ना हो. But you first ask the question, अरे किसी के साथ भी क्यों हो रहा है? किसी को नहीं चाहिए. Why is this happening? If I ask that question, it will lead me this inquisitiveness, rooting from problems. If I am happy, I will not ask this question. मैं खुश क्यों? मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है? किसी ने पूछा आज तक? जब बुरा होगा तब मैं पूछा. तब जब बार बार बुरा होगा, किसी एक दिन शायद my inquisitiveness will jago and I'll ask that, let's just see why is this happening. Who has the answer for this? That's when when this happens, Krishna is in our heart. Now he or she is asking the right question. इसको आप लीड करने की कोशिश करते हैं towards knowledge. That's when you come to the scriptures. Then you come to the Gita. Gita is first is only problem, no? Arjuna is asking, I have a lot of problems in my life. What should I do? Then Arjuna is asking the same questions as me. Now Krishna will answer. And the first part that he's answering with is that, बेटा तू ना बहुत गड़बड़ में घुस गया है. उस गड़बड़ से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा. And then you're like, मेरे साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी क्या करी है? गड़बड़ करी. This is how you reach to the level. This has taken lifetimes for us. इस लेवल तक पहुंचने में हमें लाइफटाइम्स लगी हैं. ह्यूमन लाइफटाइम्स छोड़ो, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट, सारी लाइफटाइम्स लगी हैं इस पॉइंट पे आने के लिए. अब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं. अगर मैं अब इसको थर्ड चैप्टर तक पहुंच के कल मुझे कोई मेरी बिजनेस डील पक्की हो गई, मेरी शादी पक्की हो गई, कुछ भी हो गया मेरे साथ, मैं बोलता हूँ ये ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट हो रहा है, ये हो रहा है इम्पॉर्टेंट. लाइफ टाइम्स भर की लीडिंग टू दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. बट राइट नाउ व्हाट एम आई थिंकिंग, ये जो अभी चीज़ हुई है मेरे साथ, बिजनेस डील, शादी, व्हाटएवर, वो मेरे लिए, इसको मैं क्या कर देता हूँ अभी के लिए. अरे अभी तो बहुत टाइम है, जवान है हम, अभी तो हमारे पास, इसको क्या कर देते थोड़ा, कहाँ जा रहा है, घर पे ही तो है, पढ़ लूँगा. बंद किया और मैं कहाँ घुस गया. आई हैड अ चांस ऑफ दिस आफ्टर लाइफ टाइम्स. शादी तो हमने पिछली लाइफ में भी करी है, बिजनेस तो हमने पिछले लाइफ में भी करी है. डिडंट लीड अस एनीवेयर. वी वर लेड टू दिस एंड व्हाट डिड वी डू?
बट अगेन कोई बात नहीं, जहां तक पहुंचे थे, 3rd चैप्टर तक पहुंचे थे ना, कोई बात नहीं, इस लाइफ टाइम में नहीं लोगे, अगले चैप्टर पे फिर यही पन्ना खुलेगा आपके सामने कि ट्राई करके देखो, लास्ट टाइम यू लेफ्ट इट, यू डिडंट हैव टाइम, दैट्स ओके, यू बैक अगेन, यू वांट टू ट्राई इट अगेन, you will start again from here. Business, you will grow to be a billionaire. Next life, what will happen to you? From zero again. This is the difference between material life and spiritual life. Material life goes back to zero. Spiritual life continues from where it is. आश्वासन भी है, लेकिन इसको कंप्लेसेंसी में मत बदलने देना कि अरे नहीं ये कहाँ जा रही है, अब अगले लाइफ में कर लेंगे. That is not a brilliant idea. What a good idea. Because I don't know, why do you want to go through it again and again? Why? And you know this is the answer. Why? Right? So that is something that Krishna is saying. He's saying, living only for the satisfaction of the senses, such a person lives only in vain. Says, you're living in vain. It's the 16th verse of the 3rd chapter. What should I do? Should I... The purport, Prabhupada is saying, 50 years ago ये Prabhupada ने purport लिखा था, pretty cool, first line मैं पढ़ रहा हूँ. The Mammonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification. आजकल इसके words बदल गए हैं. क्या है? Work hard, party harder. Same line. जीने के हर 4 दिन. He's saying is condemned herein by the Lord. Prabhupada बड़े जेंटलमैन है ना, तो बड़े जेंटलमैनली वे में बोल रहे हैं. Mammonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of yajnas is absolutely necessary. He's saying, he's not even saying spiritual world, कि तुम spirituality करो, नहीं. जो इस वर्ल्ड को भी enjoy करना चाहें, उसका भी एक तरीका है भाई. उसको भी तरीके से तो करो. तुम्हें एंजॉय करना है तो पुण्य तो कमाओ. पुण्य कमाने से तुम्हें एटलीस्ट you will get a rich family, you will get money, you will get beauty, you will get internet, you will get something. You will not go to the darkest region of hell. Even for that you need to know the rules of the game at least, right? Go get to know the rules of the game. Lollipop दे रहे हैं भगवान actually saying, अरे पहले पढ़ तो लो क्या है क्या से. ठीक है, माना तुम्हें नहीं जाना स्पिरिचुअलिटी में, कोई बात नहीं. बच्चों को माँ बाप बोलते हैं नहीं जाना मंदिर ना, कोई बात नहीं, बाहर बैठ जाना, बाहर प्रसाद मिले, साथ खाना, हाँ वहाँ कुछ ले दूंगा तुम्हारे लिए. करते नहीं कि नहीं करते? भगवान कर रहे हैं हमारे साथ. What all he is doing for us? Lollipops is giving us. कोई बात नहीं, तुम्हें एंजॉय करना है, कोई बात नहीं, करो, लेकिन यही तो तरीका है, यहाँ तक तो आओ. That's what he's saying. And that's what you see, especially now. एक पूरी सीरीज ऑफ हमारे त्योहार आएंगे तो हमें यही सारी चीज़ें दिखेंगी. We will see people going to the temples. I saw Zepto's ad. It said, माता की चुनरी के सेल्स हमारे दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं. माता की चुनरी बिक रही है उनकी सबसे ज़्यादा. राइट, Zepto is saying लास्ट मिनट ऑर्डर माता की चुनरी. या याद आ रहा, ओहो ये भी तो थी, सारी चीजें मंगा ली थी मैंने गरबा नाइट की, ये रह गई थी, ये मैं. Whereas Navratras are about whom? माता, पाद देवी माँ, right? But that's what we'll see now. दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करेंगे, लेकिन उसी लक्ष्मी पूजा के बाद हम सट्टा खेलेंगे, लक्ष्मी देवी का अपमान करेंगे. What is this? What are we doing? And we call it satta tradition. Where? Show me the verse, please. A reference of the verse where it is saying that teen pattiyam, play. Where is it written? Tell me. I'll also join you. अच्छा कौरव पांडवों की हम एग्जाम्पल लेंगे. वह उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें करी हैं. वैसे एक चीज क्यों फॉलो करें हम? कौरव पांडवों ने और भी बहुत सारी तपस्या भी बहुत करी उन्होंने. So I'm going to stop here. If anybody has any questions, we have around 5 to 10 minutes.
we can take them up. Otherwise, we can proceed for prasadam. We have yummy prasadam today, as usual. What is it, Prabhu? Matar kulcha, pav bhaji. I don't know. Matar kulcha, okay. Matar kulcha today. Hare Krishna. Any questions do we have?